Very good evening, all the participants. Today, we'll start with part 2. And part 2 deals with the corporate persons. So, let me share my screen with you. And I hope my screen is visible to you. Part 4. Application of this part. So, the first part, which contained up to section 3, 1 to 3, that was applicable to the whole of the code. But the definitions which are given in section 5, they are applicable to this part only. So part 2, it deals with insolvency resolution and liquidation for corporate persons. Section 4, application of this part. This part shall apply to matters relating to insolvency and liquidation of corporate debtors, where the minimum amount of default is 1 lakh rupees. Provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value, which shall not be more than 1 crore rupees. And the government issued a notification also. The government issued a notification on 24th of March 2020, whereby they said the central government hereby specifies 1 crore rupees as the minimum amount of default. Provided further that the central government may by notification specify such minimum default of higher value which shall not be more than 1 crore rupees for matters relating to pre-pack insolvency resolution process. For pre-pack, they said that the central government may specify such minimum amount of default. And minimum amount of default for pre-packaged is 10 lakh rupees, which was issued by way of notification dated 9th of April 2021. So 9th of April 2021, the central government issued a notification whereby they said that the central government hereby specifies 10 lakh rupees is the minimum amount of default for the matters relating to pre-package. So there are basically two amounts only. 1 crore for corporate debtors, and then for matters relating to pre-packaged releases, 10 lakh minimum. These are the only two amounts. Section 5. So section 5 talks of definitions. So let us see some of the definitions which are contained in section 5. One is normal CIRP in this part. Second is fast track insolvency resolution process. Any idea what is this fast track? Fast track is applicable only to specific type of companies. Say small companies, or where the asset value does not exceed 1 crore rupees, or startups mainly. So for startups also, for this fast track cases also, the minimum amount of default is 1 crore. Now section 5. Section 5 talks of certain definitions. So let us see what are the definitions. The adjudicating authority for the purpose of this part means the NCLT, constituted under section 408 of the Companies Act. Auditor means a chartered accountant certified to practice as such by ICAI. Base resolution plan. Base resolution plan means a resolution plan provided by the corporate debtor under clause C of subsection 4 of section 54A, which is pre-pack insolvency resolution process. In case of pre-pack, which we will study later, basically it is meant for only corporate MSMEs. So this is a facility which is granted to MSMEs in the corporate sector, whereby they can put up their own resolution plan, which is put up by the corporate debtor itself. Chapter means a chapter under this part. Constitutional document. Constitutional document in relation to corporate person includes articles of association, memorandum of association of a company, and incorporation document of a limited liability partnership. What is the incorporation document of a limited liability partnership? Normally it is the LLP agreement. Corporate applicant. So corporate applicant is a wider term.
and corporate applicant means corporate debtor or member or partner of the corporate debtor who is authorized to make an application for the CIRP or the pre-PAC under the constitutional document of the corporate debtor. An individual who is in charge of managing the operations and resources of the corporate debtor, or a person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor. Then corporate guarantor. Actually, there are two types of guarantors. Some are individual guarantors. Suppose an individual has given a guarantee or a partnership firm has a guarantee. So both are covered under individual guarantor or guarantor. But corporate guarantor means a corporate person who is the surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. If a company has taken a loan, if a corporate debtor has taken a loan, guarantee may be given either by the company or individual or partnership firm. In case it is given by the company, so that company which is given the guarantee is called corporate guarantee. Dispute. Dispute includes a suit or arbitration proceedings relating to existence of the amount of debt. Now, suppose a petition is filed, the other party may dispute the existence of the amount of debt itself. So they say that, okay, this party is saying that this much amount is owed, but we deny the existence of the amount of debt itself. Nothing is payable, or whatever the amount which they are saying is payable is no longer payable. Quality of goods or services, or the breach of a representation or warranty. So these are basically the points which may be covered in dispute. So dispute includes, and it is an inclusive definition. That means there could be other grounds also. So dispute includes a suit or arbitration proceeding relating to existence of the amount of debt, quality of goods or services, or the breach of a representation or warranty. So it does not mean that there has to be a suit or arbitration proceeding in each case. There could be a dispute even without the existence of any suit or arbitration proceedings. Financial creditor. Financial creditor means any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. Financial debt. Financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for the time value of money, and includes money borrowed against the payment of interest. Normally, the money is borrowed against payment of interest. But it does not mean that if the loan has been given without any interest, then it does not qualify for financial debt. It may still qualify under the definition of financial debt. It says a debt along with interest, if any. So this if any is to be read with interest. Suppose there is a company, there is a holding company, and that holding company has given loan to its subsidiary. So that may be given without interest also. So still it will qualify under the definition of financial debt. Any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility or its dematerialized equivalent. Sometimes the companies accept that, okay, we will be granting you credit up to that limit. So that if any amount is raised actually by acceptance under an acceptance credit facility, then that will also qualify for the definition of financial debt. Any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock, or any similar instrument. So basically, there has to be raising of money, normally against payment of interest and the time value of money. Amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract, which is deemed as financial or capital lease. So operating lease is not covered here. Either it should be finance lease or capital lease. And that should qualify as financial lease or capital lease under the Indian accounting standards or such other accounting standards as may be prescribed. Receivables sold or discounted other than any receivables sold on non-recourse basis. So that is also covered. Suppose you have raised bills and you get them discounted. So those bills could be discounted either on recourse basis or non-recourse basis. Non-recourse basis means the lender will not revert to the borrower in case ultimately the payment is not made. Okay? And if it is sold on non-recourse basis, other than any receivables sold on non-recourse basis, if it is sold on recourse basis, that means party A has raised bills on party B
But now, party A approaches the bank and they say, you give us money against those bills. So the banker C gives money to A and it is given on recourse basis. Recourse basis means that in case party B does not pay, then A will be liable for payment. So this is the definition. This is the meaning of non-recourse and recourse basis. Basically, reversion. Any amount factoring, you can say, any amount or bill discounting, any amount raised under any other transaction, including any forward, sale or purchase agreement, having the commercial effect of a borrowing. For the purpose of this subclause, any amount raised from an allottee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of a borrowing. So home buyers are also covered here. The expressions allottee and real estate project shall have the same meaning, respectively assigned to them in clauses D and Zn of section 2 of RERA Act. Any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price, and for calculating the value of any derivative transaction, only the market value of such a transaction shall be taken into account. So to hedge against fluctuation in rate or price, sometimes the parties enter into transactions. So the market value of such transaction is to be considered as financial debt for this purpose. Any counter indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity bond, documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution. So if a party has given an indemnity and any counter indemnity obligation is there in respect of a guarantee, indemnity bond, documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution. The amount of any liability in respect of any of the guarantee or indemnity for any of the items referred to in clauses A to H of this clause. So all these are covered under the definition of financial debt. Financial position. Financial position in relation to any person means the financial information of a person as on a certain date. And the definition of financial information we have already seen in section 3. Section 3, I think 31. कितना था section 3? Section 3, subsection 13. Section 3, subsection 13, financial information. We have already seen the definition. Basically, balance sheet, record of debt, record of liabilities, etc. Information memorandum. Information memorandum means a memorandum prepared by a resolution applicant. So this is some sort of a investor document which is basically prepared for the intended buyers. Then there is a concept of initiation date. So initiation date means the date on which a financial creditor, corporate applicant or operational creditor as the case may be makes an application. So whenever an application is made to the adjudicating authority for initiating CIRP process or pre-pack process, then that date on which the application is made is known as the initiation date. Insolvency commencement date means the date of admission of application. So there are two dates. One is the date of making the application, that is the initiation date, and another is the insolvency commencement date. So these dates have some purpose. So that is why these two dates are given. One is the initiation date and next is insolvency commencement date. Insolvency resolution process cost means the amount of any interim finance and the costs incurred in raising such a finance. Because whenever this insolvency resolution process starts, so there is some cost incurred, which is incurred up to the date of receipt of the resolution plan. So that if some interim finance is raised and the cost incurred in raising such finance, both are covered. Fees payable to any person acting as RP is covered. Any cost incurred by the RP in running the business of the corporate debtor as a going concern. Any cost incurred at the expense of the government to facilitate the insolvency resolution process. And any other cost as may be specified by the board. So all these costs are covered under the insolvency resolution process cost, which are to be paid in priority to any other payment.
even before any creditors are paid. So this is to be paid in first. Insolvency resolution process period means the period of 180 days beginning from the insolvency commencement date and ending on 180th. Because this IBC is considered to be a time-bound process, so 180 days is the time period within which this process has to be completed. There is a provision for one-time extension of 90 days and then overall period of 330 days, including any time lost in litigation. Interim finance. Interim finance means any financial debt raised by the resolution professional during the insolvency resolution process period or by the corporate debtor during the prepackaged insolvency resolution process period, as the case may be, and such other debts as may be. Now you will notice two things here. Interim finance means any financial debt raised by the resolution professional, because in normal insolvency resolution process, the powers of the board stand suspended and every activity is to be carried out by the RP. But in case of prepackaged insolvency resolution process, which is restricted only to corporate MSMEs, the powers of the board still remain there intact unless they are removed by the adjudicating authority. So that is why they have written the word corporate debtor or by the corporate debtor during the prepaid. So in case of normal CIRP, the interim finance is raised by the RP, but in case of prepack, this is raised by the corporate debtor. Liquidation cost. Liquidation cost means any cost incurred by the liquidator during the period of liquidation. Liquidation commencement date means the date on which the proceedings for liquidation commence in accordance with section 33 or section 59. Liquidator means an insolvency professional appointed as a liquidator in accordance with the provisions of chapter 3 or chapter 5. Officer. Officer for the purpose of chapter 6 and chapter 7 of this part means an officer who is in default as defined in clause 60 of section 2 of Companies Act, or a designated partner as defined in clause A of section 2 of Limited Liability Partnership Act. Operational creditor. Operational creditor means a person to whom an operational debt is owed and includes any person to whom such debt has been legally assigned or transferred. Then operational debt. Operational debt means a claim in respect of the provision of goods or services, including employment, or a debt in respect of payment of dues arising under any law for the time being in force and payable to the central government, state government, or any local authority. So these dues which are payable to the central government, state government, or any local authority, they are also covered under operational debt. Okay. Personal guarantor. Personal guarantor means an individual who is the surety in a contract of guarantee to a corporate debtor. So we have seen the definition of corporate guarantor and now we have seen the definition of personal guarantor. Now a question is coming to my mind that it is saying in respect of payment of dues arising under any law for the timing in force and payable to the central government. Suppose there is a central government employee and the central government has given, say, festival advance or some advance to that person. So whether that advance will come under financial debt or operational debt? What is your answer? Suppose there is a central government employee and the central government has given some, say, festival advance. So whether that festival advance will come under financial debt or operational debt? What is your view on that? बहुत सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल थोड़ी है.
सो ऑपरेशनल डेट, हाँ जी, ऑपरेशनल डेट। नहीं ऑपरेशनल डेट तो नहीं होगा, फाइनेंशियल डेट ही होगा। क्यों, वर्ड क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ ड्यूज, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड पेबल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू हो अमाउंट, पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। ड्यूज क्या है बेसिकली? ड्यूज ये है कि आपने पहले कहीं से रिकवर किया है। बेसिकली इट इज कवरिंग बेसिकली टैक्सेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग, तो मेरे हिसाब से अगर कोई फाइनेंशियल डेट की नेचर का पेमेंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे देती है इंडस्ट्री को डायरेक्टली, या स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे देती है, या लोकल अथॉरिटी को लोन दे देती है, तो दैट विल स्टिल क्वालिफाई एज फाइनेंशियल डेट। ऑपरेशनल डेट में नहीं आएगा। ऑपरेशनल डेट में क्या आता है? बेसिकली टैक्सेस, टैक्स आ जाएगा, सेस आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएगी। पर्सनल गारंटर, पर्सनल गारंटर मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज द श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू ए कॉर्पोरेट डेटर। Personnel includes the directors, managers, key managerial personnel, designated partners, and employees, if any of the corporate debtor. ठीक है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, देखिए दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच इज प्रिपेयर्ड बाय द आरपी अंडर सेक्शन 29, another is preliminary information memorandum। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? So this means a memorandum prepared by the corporate debtor, submitted by the corporate debtor under clause B of subsection 1 of section 54G। तो सेक्शन 54 क्या है? बेसिकली प्रीपैक का है। तो इन केस ऑफ प्रीपैक, दिस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। जो इसी तरह से बेस रेजोल्यूशन प्लान, दैट इज ऑल्सो सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। Prepackaged insolvency commencement date. Prepackaged insolvency commencement date means the date of admission of an application for initiating prepackaged insolvency resolution process period. ठीक है। फिर prepackaged insolvency resolution process cost, amount of interim finance and cost raised, fees payable to any person acting as RP, and any expenses incurred by him for conducting the prepackaged insolvency resolution process. Any cost incurred by the RP in running the business as a going concern pursuant to an order, any cost incurred at the expense of the government to facilitate the prepackaged, any other cost as may be specified. So all these are covered under prepackaged insolvency resolution process. बाकी जब हम प्रीपैकेज डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे सारा। प्रीपैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, ये पीरियड कितना है? ये पीरियड एक्चुअली क्या है, इसमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। वो क्या कहता है कि 120 डेज में आपको करना है प्री, जैसे यहाँ 180 डेज है, वहां 120 डेज, but there are different scenarios in that. So prepackaged insolvency resolution process period means the period beginning from the prepackaged insolvency commencement date and ending on the date on which an order under subsection 1 of section 54L or subsection 1 of section 54N or subsection 2 of section 54O, as the case may be, is passed by the adjudicating authority। क्योंकि प्री पैकेज का टर्मिनेशन भी हो सकता है, लिक्विडेशन ऑर्डर भी हो सकता है, प्री पैकेज जो है सीआईआरपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब हम प्री पैक पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रिलेटेड पार्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेट डेटर मींस a director or partner of the corporate debtor or a relative of a director or partner of the corporate debtor। सबसे पहला क्या आ रहा है इसमें? रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर या पार्टनर। ये पार्टनर वर्ड कब यूज होगा? पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये वर्ड कब यूज होगा? पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन केस ऑफ एलएलपी, क्योंकि एलएलपी में डायरेक्टर नहीं होते, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर ही होते। तो क्या आ रहा है इसमें? डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट, कंपनी होगी तो डायरेक्टर हो गया, और अगर एलएलपी है तो पार्टनर, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इसको मैं ना दूसरा एक बार ये बोलता हूँ साथ कर, जस्ट अ मिनट।
ये इलस्ट्रेशन फॉर रिलेटेड पार्टी। हाँ जी, ये निकाल। So in this PPT, I hope it is visible on your screen now. So what I've done is I've given illustrations for each and every case. So in order to be covered under section 5 subsection 24, the first condition is that there has to be a corporate person on one side. ठीक है, अगर दोनों साइड में ही नॉन कॉर्पोरेट पर्सन हो जाएंगे तो फिर ये 524 में नहीं आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। Once we are sure that there is a corporate person on at least one side, we have to ensure that either party is able to control or influence the business decisions. भाई बेसिक आइडिया क्या है 524 का? 524 के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि पार्टी इज एबल टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, अब ये कैसे इन्फ्लुएंसिंग कैसे हो सकती है? इट कुड बी बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप, कोई रिलेटिव है तो हो सकती है, या शेयर होल्डिंग की वजह से हो सकती है, ओनरशिप, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब ए बी और सी में कौन कौन सी क्लॉजेज हैं? ए बी और सी में सिंपल रिलेशनशिप्स है 524 ए बी और सी। ठीक है, अब इनको देखते हैं ए बी और सी में क्या क्या कवर्ड है। ए रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू ए कॉर्पोरेट डेटर मींस ए डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और ए रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, या तो डायरेक्टर या पार्टनर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर। अब रिलेटिव में क्या क्या आ रहे हैं? रिलेटिव में जो आ रहे हैं वो यहां दे रखे, ये रिलेटिव की डेफिनेशन। ठीक, रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर। ठीक है, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ फादर मदर सन डॉटर, ये सारी रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, एंड वेयर एवर द रिलेशन इज दैट ऑफ सन डॉटर सिस्टर और ब्रदर देयर स्पाउसेस शैल आल्सो बी कवर्ड। तो ए में क्या आ गया? डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ। अब अगर कंपनी है तो कंपनी के साथ अगर डायरेक्टर जो है तो वो रिलेटेड पार्टी हो गया। ठीक है, या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर हो गया। अगर एलएलपी है तो उसका पार्टनर रिलेटेड पार्टी है या रिलेटिव ऑफ पार्टनर भी रिलेटेड। ठीक है, अब रिलेटिव ऑफ पार्टनर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कहां से देखेंगे? वो यहां से देखेंगे। ठीक है, बी ए की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और रिलेटिव ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो केएमपी या रिलेटिव ऑफ केएमपी। अब केएमपी की डेफिनेशन कहां दे रखी है आपको? वो भी आपको कंपनी एक्ट में मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ आईबीसी में तो है नहीं केएमपी की डेफिनेशन। चल, केएमपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और रिलेटिव ऑफ केएमपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। सी में क्या आ रहा है? ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ए पार्टनरशिप फॉर्म इन विच ए डायरेक्टर पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और इज रिलेटिव इज ए पार्टनर। ठीक है, कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं ये हमने दे दिए। भाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये डायरेक्टर या पार्टनर या मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और इज रिलेटिव इज ए पार्टनर। देखो पहली दोनों कंडीशंस में क्या आ रहा था? डायरेक्टर या पार्टनर। यहां पर क्या हो गया? मैनेजर भी आ गया। फर्स्ट टू रिलेशनशिप्स में पार्ट ये केएमपी था उसमें, अब ये केएमपी से नीचे आकर के मैनेजर आ गया। तो ये सारी रिलेशनशिप यहां पर कवर हो जाएंगे। नाउ सब क्लॉज डी एंड डी। सो सब क्लॉज डी एंड डी में क्या है? दीज कवर केसेस वेयर ए डायरेक्टर along with his relatives hold more than 2% of the share capital or paid up share capital. डी क्लॉज क्या बोलती है? डी क्लॉज बोलती है ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज
डायरेक्टर। देखो पहले तीन रिलेशनशिप में क्या था, पहले तीन रिलेशनशिप में कोई होल्डिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। क्या है, या तो डायरेक्टर है, या पार्टनर है, या केएमपी है, या मैनेजर है, या उसका रिलेटिव। यही सब डेफिनेशन थी ए बी और सी में। डी में क्या आ गया, शेयर होल्डिंग भी आ गई। क्या बोल रहा है, ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब एबीसी से प्राइवेट लिमिटेड, अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एक डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, ठीक है। और उसमें उस कंपनी में इस डायरेक्टर का या पार्टनर का मिला करके more than 2% ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनी क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स more than 2% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, ठीक। Subclass D covers cases in which shareholding of the director along with his relatives is more than 2% of its share capital. देखिए दो कंडीशंस हैं, पहली बात, एक तो डायरेक्टर होना चाहिए, दूसरा more than 2% शेयर कैपिटल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई किसी के पास सिर्फ more than 2% शेयर कैपिटल है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है, तो फिर ये प्राइवेट प्राइवेट कंपनी और वो कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्टर भी होना चाहिए और more than 2% शेयर कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये एग्जांपल हमने दे रखे हैं सारे। अब ई क्लॉज कौन सी है, ई क्लॉज बोलती है पब्लिक कंपनी इन विच ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर। पहले में डी में क्या था, प्राइवेट कंपनी, ई में क्या है, पब्लिक कंपनी एंड होल्ड्स अलोंग विद रिलेटिव्स more than 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर वर्ड क्या दे दिया, पेड अप शेयर कैपिटल, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या दिया, शेयर कैपिटल। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं खास, ठीक है। सो सब क्लॉज ई कवर्स केसेस इन विच शेयर होल्डिंग ऑफ द डायरेक्टर along with his relatives is more than 2% of the paid up share capital of the public company. In clause E, the term used is paid up share capital as against share capital. In clause, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन इसमें भी डी और ई में दोनों कंडीशन है, डायरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कंपनी में मैनेजर है, दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर है, ठीक है। दो कंपनियां ले लीजिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, और एक तरफ ले लीजिए एबीसी लिमिटेड या एबीसी पब्लिक। अब इसमें डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में भी वो डायरेक्टर है, या इस कंपनी का मैनेजर है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टरशिप अलोंग विद शेयर होल्डिंग, दोनों चीजें। एफ, एफ क्लॉज क्या बोलती है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of directors, managing director or manager in the ordinary course of business acts on the advice, directions or instructions of a director, partner or manager of the corporate debtor। यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट, ये पहली बार वर्ड यूज किया गया 524 में। तो क्लॉज एफ यूजेस द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस हो जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट कुड इंक्लूड ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी आ सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, कोई कॉमन डायरेक्टर नहीं है, पार्टनर या शेयर होल्डिंग भी नहीं है, बट देयर इज ए रिमोट कंट्रोल। क्या कहता है, एक्ट्स ऑन द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट। तो शेडो कंट्रोल है, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। Another important thing to note is acting in the ordinary course of business and not under any special circumstances or in a professional capacity, ठीक है। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई डायरेक्टर है तो वो कवर्ड नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Here it could be difficult for RP to prove such a connection, so it could be on the basis of press reports या रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सम कंक्रीट एविडेंस। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट छापी, उस रिपोर्ट में लिखा कि वी आर एंटरिंग इनटू ए
टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद दिस कंपनी। ठीक है, इस तरह से कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस कहीं आ सकता है जिससे पता चल जाए कि भाई इनके डायरेक्टर्स आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और इसमें कोई डायरेक्टरशिप नहीं है, कोई कॉमन डायरेक्टर भी नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग भी नहीं है। ठीक है, जी पार्ट क्या है? एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ए पार्टनरशिप फर्म whose partners or employees in the ordinary course of business acts on the advice, directions or instructions of a director, partner or manager of the corporate data। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया? यहाँ एम्प्लॉइज आ गया। ठीक है, एनी एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म whose partners और एम्प्लॉइज, पहले अभी एफ क्लॉज तक वर्ड एम्प्लॉय नहीं आया था, यहाँ एम्प्लॉय भी आ गया। ठीक है, another important thing is in the ordinary course of business, so such a relationship would not be easy to establish, but an inference could be drawn from the premises in which the business is being run, frequency of interaction, signatures and documents। कई बार क्या होता है, एक कंपनी से ज्यादा कंपनीज एक ही एड्रेस पर चल रही होती, एक कंपनी भी है, पार्टनरशिप फर्म भी वहीं पर चल रही है, एलएलपी भी वहीं पर चल रही है, वाउचर साइन करने वाला बंदा एक ही है। ठीक है ना, तो उस तरह से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सकता है कि ये रिलेटेड पार्टीज हैं। ठीक, तो प्रीमिसेस से आइडिया लग सकता है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट्स, अगर सिग्नेचर वाली अथॉरिटी एक ही है, ठीक है ना, उस एलएलपी की या कंपनी की, तो भी उस केस में हम ये मान लेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी है। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इज अकस्टम्ड टू इट। अब आप इसमें एक चीज नोट करेंगे, जितने भी क्लॉजेज आ रही हैं, एक तरफ कॉर्पोरेट डेटा है, ठीक है ना, वर्ड कॉर्पोरेट डेटा आपका हर जगह पर आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है। यहां पर वर्ड यूज कर लिया पर्सन, एनी पर्सन, अब पर्सन में तो इंडिविजुअल भी आ गए, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन हमने देख रखी है पहले ही। ठीक है ना, पर्सन की डेफिनेशन तो हमारे को सेक्शन 3 में ही दे रखी है मेरे हिसाब से, सेक्शन 3 सब सेक्शन 23 में डेफिनेशन दे रखी है पर्सन की। तो पर्सन में तो इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सारे आ रहे। ठीक है, तो सब क्लॉज एच यूजेस द वर्ड पर्सन व्हिच में इंक्लूड इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट एटसेट्रा एज वेल। द टर्म accustomed टू एक्ट, अब यहाँ वर्ड क्या किया गया, accustomed टू एक्ट, अभी आईबीसी में तो डिफाइंड नहीं है ना, कंपनीज एक्ट में है, so it suggests habitual tendency to follow and obey the advice, instructions and directions on a repetitive basis। ठीक है, मतलब ये जैसे टाटा सन्स है, अब टाटा सन्स मान लीजिए ट्रस्ट है, ठीक है, अब उसमें रतन टाटा जो अब नहीं रहे, तो मान लीजिए रतन टाटा की एडवाइस पर लोग काम करते हैं, तो वो फिर रिलेटेड पार्टी हो जाए। ठीक है, ये ए बॉडी कॉर्पोरेट which is a holding subsidiary or an associate company of the corporate debtor or a subsidiary of a holding company to which the corporate debtor is a subsidiary, ये आई क्लॉज है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज ए होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ द सिटी। ठीक है, और बोथ दी बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट डेटर आर सब्सिडरीज ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, दोनों सब्सिडरी है, तो मतलब को सब्सिडरी। ठीक है, तो क्या क्या कवर हो जाएगा इसमें, होल्डिंग कंपनी ऑफ सिटी कवर हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ सिटी हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी मतलब मोर देन 50%, एसोसिएट मतलब एटलीस्ट 20%। ठीक है, और होल्डिंग और सब्सिडरी तो जस्ट अपोजिट है, और को सब्सिडरी अगर दोनों ही किसी कंपनी की सब्सिडरी है तो। और चेक क्या करना है, व्हाट इज टू बी चेक्ड, कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑल और majority of directors। If a company is able to control the composition of board of directors of another company, then that company is said to be a related party। ठीक है, या more than 50% share capital on its own or along with its subsidiaries। ठीक है, या ability to influence decision making holding at least 20% of the share capital, तो फिर वो एसोसिएट की डेफिनेशन में आ जाएगी। जी, any person who controls more than 20% of voting rights in the corporate debtor
ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और ए वोटिंग एग्रीमेंट। तो जे और के क्लॉजेस सिमिलर है। जे क्लॉज में क्या आ रहा है? जे क्लॉज में एनी पर्सन इज कंट्रोलिंग, इन सब क्लॉज के द सीडी इज कंट्रोल। ठीक है। और कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज कंट्रोलिंग? एनी पर्सन। कंट्रोल कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कंट्रोल का मतलब क्या है? बेसिकली कंट्रोल का मतलब यही है कि एबिलिटी टू अपॉइंट majority, appoint ability to appoint or remove all or majority of the directors। ठीक है। what is to be controlled? voting rights। ठीक है। राइट्स ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कंपनी टू वोट इन एनी मीटिंग और बाई पोस्टल बैलेट। और कितना कंट्रोल करना है? मोर देन 20%। एंड हाउ इट इज टू बी कंट्रोल्ड? ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और ए वोटिंग एग्रीमेंट। एनी पर्सन हु कंट्रोल्स मोर देन 20%। एक एचयूएफ है। इन एचयूएफ देयर आर 4 को-पार्टनर्स। ठीक है। चारों के पास 6% है, टोटल 24% है। कर्ता के साथ एग्रीमेंट है उनका कि भाई ऑल विल वोट इन यूनिजन, ऑल विल वोट इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है। मोर देन 20% कंट्रोल हो गया। सो दैट एचयूएफ इज कंट्रोलिंग। सो दैट एचयूएफ एंड दैट कॉर्पोरेट डेटर आर रिलेटेड पार्टीज। ये मतलब के क्लॉज, एनी पर्सन इन whom the corporate debtor controls more than 20% of voting rights on account of ownership or a voting agreement। इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है? सीडी। ठीक है। क्या कंट्रोल कर रहा है? वोटिंग राइट्स। एंड हु कुड बी कंट्रोल्ड? एनीवन वेयर डिसीजंस आर टेकन बाय वोटिंग। फॉर एग्जांपल करता ऑफ एचयूएफ। हाउ मच इज टू बी कंट्रोल्ड? मोर देन 20%। एंड हाउ इट इज टू बी कंट्रोल्ड? ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप और वोटिंग। L clause, any person who can control the composition of the board of directors or corresponding governing body of the corporate debtor। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? एनी पर्सन। व्हाट इज बीइंग कंट्रोल्ड? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड और corresponding governing body of the corporate debtor। Now how composition of board of directors could be controlled? Ability to appoint or remove majority of the directors। Now what is the difference between board of directors and governing body? In case of company, it is board of directors. If it is a body corporate other than a company, it is the governing body। ठीक है। एंड स्ट्रेस इज ऑन द एबिलिटी टू कंट्रोल। कैन कंट्रोल लिखा वर्ड, कंट्रोल्स नहीं लिखा, कैन कंट्रोल। तो यूज ऑफ द वर्ड कैन। सो एक्चुअली सच एबिलिटी मे और मे नॉट बी एक्सरसाइज्ड। तो ये इन केस में क्या होगा कि ये जो पर्सन है हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन of the board of directors or corresponding governing body of the corporate debtor, so then that person and their CD are said to be related parties। M, any person who is associated with the corporate debtor on account of participation in policy making processes of the corporate debtor। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? एक पॉलिसी मेकिंग कमेटी बना रखी है, उसका मेंबर है, रिलेटेड पार्टी हो गया। Having more than 2 directors in common between the corporate debtor and such person। Interchange of managerial personnel between the corporate debtor and such person। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ एलएलपी है, वो मैनेजरियल पर्सनल इंटरचेंज है। ठीक है। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है कोई। ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा? ये वो जो कंपनी है, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है और जो सीडी है, बोथ आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टीज। ठीक है। तो ये हमारे 524 था। अब आगे चलते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो यू कैन गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशंस। अच्छा, उसके बाद में आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। 525। ये 524 हो गया हमारा। 524A, 524A देख लीजिए, रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। तो 524 क्या था? 524 था आपका रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू ए कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है। और यहाँ 524A में क्या है? रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, a person who is a relative of the individual or a relative of the spouse of the individual। ठीक है। अब आप ये कहोगे 524A को यहाँ क्या पढ़ने की जरूरत है?
रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां हम कॉर्पोरेट पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। सो ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ए पार्टनर ऑफ एलएलपी और एलएलपी और ए पार्टनरशिप फर्म इन विच द इंडिविजुअल इज ए पार्टनर। वहां पर कंपनी थी, यहां पर क्या आ रहा है, इंडिविजुअल। ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। Private company in which the individual is a director and holds along with his relatives more than 2% of its share capital. Public company in which the individual is a director and holds along with the relatives more than 2% of its paid up share capital. ठीक है। A body corporate whose board of directors, managing director or manager in the, अच्छा इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, है ना, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए दो, आप एक बार 524 का पॉइंट नंबर देखिए डी, ठीक है। 524 का डी पढ़िए एक बारी। 524 का डी क्या बोलता है, तब समझ में आएगा। 524 का डी बोलता है ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। इसका मुझे कोई मतलब समझाइए पहले। 524 का डी का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। 524 का डी मुझे मतलब बताइए, फिर 524 ए का डी पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ जाएगा क्या है। 524 का डी का क्या मतलब है? हाँ जी बताइए, कोई भी बताइए। देखो यहाँ ना सब सीख रहे हैं आपस में, ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत बोल दूंगी तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप बताइए, मतलब बताइए। प्रखर जी आप बताइए, क्या मतलब, क्या समझ में आया 524 डी? सर अगर 2% से ज्यादा डायरेक्टर और पार्टनर की होल्डिंग है हाँ तो ठीक है। हम्म। वो रिलेटेड पार्टी हाँ होगा। देखिए इसमें 524 डी का मतलब क्या है, एक तो है, एक तरफ है हमारा कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। अब हमें कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी देखनी है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी ऐसी कंपनी जिसमें ये जो सीडी का डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर डायरेक्टर है, दोनों तरफ कंपनियां हैं, ठीक है। एक तरफ से एबीसी लिमिटेड है जो हमारी सीडी है, और एक तरफ है हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब जो एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर है या पार्टनर है या मैनेजर है, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, ठीक है। और अपने रिलेटिव्स के साथ उसके पास 2% से ज्यादा उसकी शेयर कैपिटल है। तो एबीसी लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी, इसका ये मतलब है, ठीक है, क्लियर है। अब हम 524 ए का डी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें मिलती जुलती सी हैं। ये देखिए 524 ए, 524 ए का डी क्या आ गया यहां पर, हमने क्या पढ़ा शुरू में, रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। अब यहां पर इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप देखनी है। और डी क्या है, ए प्राइवेट कंपनी इन विच द इंडिविजुअल इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विद रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। अब एक आदमी है मोहनलाल, ठीक है। अब ये जो मोहनलाल है ये कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, और अपने रिलेटिव्स के साथ उसके पास 2% से ज्यादा शेयर कैपिटल है इस प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल है मोहनलाल और वो जो प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी, ये मतलब, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया 524 डी और 524 ए डी का मतलब। उसमें क्या है, दोनों तरफ कंपनियां हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ एक तरफ तो इंडिविजुअल है, पक्का है, रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के एंगल से देख रहे हैं, वहां हम किसके एंगल से देख रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर के एंगल से, कि कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी कौन सी है 524 में। और 524 ए में हम क्या देख रहे हैं,
कि इंडिविजुअल के रिलेटेड पार्टी कौन सी, ठीक है। 524 AE, a public company in which the individual is, देखिए वर्डिंग सेम सी है, लेकिन बेसिक मतलब हमें समझना है कि 524 में द रिलेशनशिप इज टू बी सीन फ्रॉम द एंगल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, हियर द रिलेटेड पार्टी इज टू बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। इतना ही फर्क है। Public company in which the individual is a director and holds along with his relatives more than 2% of its paid up share capital. Body corporate, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पर्सन ऑन होस्ट, ठीक है। ये सारे हमारे पहले भी आ गए। ये लास्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। ए कंपनी वेयर द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल अलोंग विद दिस रिलेटेड पार्टी owns more than 50% of the share capital of the company or controls the appointment of the board of directors of the company, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल है और ये जो कंपनी है दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, relative with reference to any person means anyone who is related to another in the following manner। ये सारा इसके अंदर फिर डेफिनेशन दे रखी है। And wherever the relation is that of a son, daughter, sister or brother, their spouses shall also be included। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा तो चिंता मत करें, धीरे धीरे 2-4 बार जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मीन्स ए पर्सन हु इंडिविजुअली और जॉइंटली, मीन्स ए पर्सन। देखो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी। पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली है, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन देख ली ना हमने। सेक्शन किस में आ रही है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन 23, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन हो सकता है? मीन्स ए पर्सन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। वो इंडिविजुअली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअली भी सबमिट कर सकते हैं और जॉइंटली भी कर सकते हैं। सबमिट्स ए रेजोल्यूशन प्लान टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल pursuant to the invitation made under clause H of subsection 2 of section 25 or pursuant to section 54K as the case may be। ये 54 क्या है? वो प्रीपैक, ठीक है। Resolution plan, resolution plan means a plan proposed by the resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern, ठीक है। And for removal of doubts, it is hereby clarified that a resolution plan may include provisions for the restructuring of the corporate debtor, including by way of merger, amalgamation and demerger, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर दिस पार्ट मींस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देखिए चाहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो चाहे लिक्विडेटर हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना उसका जरूरी है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट मींस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल appointed to conduct the corporate insolvency resolution process or the prepackaged insolvency resolution process as the case may be, and includes an interim resolution professional, ठीक है। और वोटिंग शेयर क्या है? वोटिंग शेयर मीन्स द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स which is based on the proportion of the financial debt owed to such financial creditor in relation to the financial debt owed by the corporate debtor। देखिए होता क्या है, जैसे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वो जो सपोज आप समझ लीजिए 10th ऑफ मार्च को एक एप्लीकेशन फाइल हो गई, ठीक है। तो ये 10th ऑफ मार्च कौन सी डेट मानी जाएगी? क्या इस डेट को कहेंगे हम? इनिशिएशन डेट, कमेंसमेंट डेट, क्या बोलेंगे? इनिशिएशन डेट। हाँ, इनिशिएशन डेट। और सपोज ये 15th मार्च को एडमिट हो गई, तो 15th मार्च को हम क्या बोलेंगे? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब कमेंसमेंट डेट हो गई, कमेंसमेंट डेट के बाद में क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी। पब्लिक अनाउंसमेंट में आप क्लेम्स इनवाइट कर लेंगे। क्लेम्स इनवाइट में अब आपके पास प्रपोर्शन ऑफ डेट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बेस पर वोटिंग शेयर असाइन हो जाएगा। तो वोटिंग शेयर मीन द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स which is based on the proportion of the financial debt owed to such financial creditor
इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल डेट ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो जो क्लेम्स आते हैं, क्लेम्स में जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं उनका जितना जितना डेट होता है उसके हिसाब से उसको वोट शेयर असाइन करते हैं। ये था हमारा सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 देख लेते हैं। सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है पर्सन्स हु मे इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या जरूरी है? डिफॉल्ट जरूरी है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट होगा तभी आप ये CIRP प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। Where any corporate debtor commits a default, a financial creditor, an operational creditor, or the corporate debtor itself may initiate corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor in the manner as provided under this chapter। ठीक है, तो 3 लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, FC, OC या CD, लेकिन डिफॉल्ट होना जरूरी है। और डिफॉल्ट अमाउंट कितना है? डिफॉल्ट अमाउंट CIRP के लिए 1 करोड़। 1 CR। 1 करोड़। और प्रीपैक में कितना है? 10 लाख। ठीक है, तो क्या इसमें जो 1 करोड़ है इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है? including interest. यस, इंक्लूडिंग। नाउ सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इंसॉल्वेंसी इनिशिएट करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है? सेक्शन 7 बोलता है ए फाइनेंशियल क्रेडिटर either by itself or jointly with other financial creditors, ठीक है, or any other person on behalf of the financial creditor as may be notified by the central government may file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred। देखिए, डिफॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, और एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं? सिंगल या ज्वाइंटली। ठीक, 4 फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, 25-25 लाख रुपए का डिफॉल्ट है, एप्लीकेशन लगा देंगे नहीं लगाएंगे? लगा सकते हैं। लगा सकते, राइट, बिल्कुल। जोधपुर हाई कोर्ट का केस है ये, तो मैं वो केस का साइटेशन भी दे दूंगा आपको, इसमें एग्जैक्टली यही केस। प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेफर टू इन क्लॉजेस A and B ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21। ठीक है, अब ये जो क्लॉजेस A and B ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21 है, इसमें कौन कौन से केसेस आ रहे हैं बेसिकली? अब एक बार सेक्शन 21 खोल लेते हैं। तो सेक्शन 21 में वो कहता है क्लॉजेस A and B ऑफ सबसेक्शन 6A। 21 का 6A खोलते हैं पहले। 21 के 6A में आते हैं आपके कि जहां पर सिक्योरिटीज हैं या डिपॉजिट। सपोज एक कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, अब डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं 1-1 करोड़ रुपए का, एक मान लो डिवेंचर है, ठीक है, तो क्या सिंगल डिवेंचर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, उस केस में क्या है? उस केस में कंडीशंस डिफरेंट है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स, इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर। तो उसमें मिनिमम कंडीशन है नॉट लेस देन 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास, क्योंकि ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ के डिवेंचर्स इश्यू कर रखे हैं कंपनी ने, ठीक है, अब 100 करोड़ में से मान लीजिए एक आदमी एप्लीकेशन नहीं लगा पाएगा, तो क्या होगा? मिनिमम 100 लगाने पड़ेंगे या 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास विच एवर इज, या फिर मिनिमम 10। इस तरह से। क्यों? क्योंकि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में वो ये कहता है कि भाई या तो 100 लोग इफेक्टेड होने चाहिए या मिनिमम 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स। अगर सिंगल आदमी को तकलीफ है तो एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटेड अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उस केस में भी कितने होने चाहिए? मिनिमम 100 of such allottees under the same real estate project, or not less than 10% of the total number of such allottees under the same real estate project, whichever is less। इसका बैकग्राउंड मैं बताता हूं आपको, ये क्यों किया गया 100 वाली कॉन्सेप्ट। पहले आपको मालूम है जब IBC शुरू हुआ था
तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 4 कितना था? 1 लाख। ठीक है, ये बाद में किया गया 1 करोड़, पहले तो 1 लाख था। तो 1 लाख में क्या होता था, और उसमें कोई ये वाली कंडीशन भी नहीं थी कि भाई मिनिमम 100 या 10%। तो एक सिंगल होम बायर है, सिंगल होम बायर भी एप्लीकेशन लगा देता था, विड्रॉल का भी प्रोविजन नहीं था। एक बार एप्लीकेशन लग गई तो CIRP होगी ही होगी। तो बिल्डर्स लॉबी फिर गए इसके अगेंस्ट में कि देखो जी ऐसा है, हमारे इतने प्रोजेक्ट है, हजारों मान लो उसमें होम बायर है, एक पर्टिकुलर का कोई ग्रीवांस है, तो ये थोड़ी कि हमारे को ही विल होल्ड अस टू रैंसम। तो उन्होंने इसमें ये कहा कि भाई मिनिमम 100 होने चाहिए, या टोटल नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर के ऊपर ही है। ठीक है, क्यों अमाउंट क्यों नहीं दिया? अमाउंट तो पहले ही दे दिया सेक्शन 4 में, है ना। तो अब इसमें ये है कि मान लीजिए 5000 एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें 5000 होम बायर्स है, तो कितने लोग एप्लीकेशन लगा देंगे? मिनिमम कितने लोग लगा पाएंगे एप्लीकेशन? एक प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसमें 5000 होम बायर्स, वो एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, डिफॉल्ट हो गया है कंपनी में, बिल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो कितने लोग एप्लीकेशन लगाएंगे? मिनिमम 100। यस, 100 या टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर, तो वो 500 हो गया, विच एवर इज लेस तो 100 लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये हो गया हमारा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP हैज बीन फाइल्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर टू द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो एंड हैज नॉट बीन एडमिटेड, क्योंकि ये अमेंडमेंट बाद में आई थी 2020 में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपकी एप्लीकेशन लगी हुई है, मान लीजिए सिंगल बार ने एप्लीकेशन लगा रखी है, तो भी कहता है कि भाई इसको आप जो है विद इन 1 मंथ इसको ठीक करो, अदरवाइज क्या होगा? विद इन 30 days ऑफ द कमेंसमेंट, फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन विथड्रॉ हो गई है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए डिफॉल्ट इंक्लूड्स अ डिफॉल्ट in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate applicant। मतलब क्या? मतलब ये है कि डिफॉल्ट किसका होगा? डिफॉल्ट जरूरी नहीं कि उसे एप्लीकेंट का ही हो, ठीक है, किसी दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी डिफॉल्ट हो सकता है, तो भी वो एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, द फाइनेंशियल क्रेडिटर shall make an application under subsection 1 in such form and manner and accompanied with such fees as may be prescribed। तो इसके लिए रूल्स दे रखे हैं 4, 8 और 10। तो उन रूल्स में दे रखा है कि किस फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है, कितनी फीस लगानी है, ये सब इसके अंदर दे रखा है। ठीक, द फाइनेंशियल क्रेडिटर shall along with the application furnish, इसके साथ क्या क्या लगाना है? रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट recorded with the information utility or such other record or evidence of default as may be specified, name of the RP proposed to act, इसमें नेम भी देना पड़ेगा। ठीक है, any other information as may be specified by the board। ठीक है, रेगुलेशन 2A, the adjudicating authority, और adjudicating authority क्या करेगी? within 14 days they will ascertain the existence of default। ठीक है, from the records of an information utility or on the basis of other evidence furnished by the financial creditor, provided that if the adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed an order within such time, it shall record its reasons in writing for the same। ठीक, मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर 14 दिन में ऑर्डर नहीं दिया तो फिर वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नॉर्मली विद इन 14 डेज उनको जो है ऑर्डर पास करना। Where the adjudicating authority is satisfied that a default has occurred, इस उन्होंने क्या कंडीशन देखनी है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन के लिए? एक तो डिफॉल्ट हो गया, और दूसरा एप्लीकेशन कंप्लीट है, और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है अगेंस्ट द प्रपोज्ड RP, तो एडमिट कर लेंगे। ठीक है, या अगर उनको लगे डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट द प्रपोज्ड RP, तो वो रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले दे विल गिव ए नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन हिज एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और CIRP प्रोसेस कब से शुरू हो जाएगा?
फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ये हमारा सेक्शन 7। और ये ऑर्डर किसको दे देंगे? अब ऑर्डर या तो एडमिट हुआ होगा या एप्लीकेशन एडमिट हुई होगी या रिजेक्ट हुई होगी। अगर एप्लीकेशन एडमिट हुई है तो इसकी कॉपी देंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर को, लेकिन अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो इसकी कॉपी देंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, विद इन 7 days ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन। ये हो गया हमारा सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात, सिंगली या ज्वाइंटली एप्लीकेशन लग सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज या डिपॉजिट होल्डर्स मिनिमम कितना है? 100 या 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स। और होम बायर्स के केस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ये होना चाहिए। 14 days में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एडमिट या रिजेक्ट करनी है, अदरवाइज रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या बोलता है? अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सेक्शन 7 था इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं की गई। यहां वर्ड कभी डिस्प्यूट आया नहीं आया। क्या बोला? डिफॉल्ट होना चाहिए और एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और जो प्रपोज्ड आरपी है उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है। वहां डिफॉल्ट, वहां डिस्प्यूट की बात नहीं की सेक्शन 7 में, लेकिन 8 में बात करेगा और 9 में बात करेगा। ठीक है, सेक्शन 8 में कौन एप्लीकेशन लगा रहा है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मे ऑन द occurrence ऑफ अ डिफॉल्ट डिलीवर ए डिमांड नोटिस। सबसे पहले इसमें डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। अब क्या ऐसा कोई डिमांड नोटिस फाइनेंशियल क्रेडिटर ने दिया था? द आंसर इज नो। वहां तो डिफॉल्ट हो गया, सीधी एप्लीकेशन लग जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में उसमें नोटिस देना जरूरी नहीं है। यहां पर क्या है? यहां सबसे पहले उसको डिमांड नोटिस देना है ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट और कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द डिफॉल्ट। क्यों देना है? ये इसलिए देना है कि भाई कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो वो बताएगा भाई हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। ठीक है, द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया? डिमांड नोटिस दिया। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर को 10 दिन के अंदर रिवर्ट करना है विद इन 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस। क्या कहना है कि भाई हमारा तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी, और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल्ड बिफोर द रिसीट ऑफ सच नोटिस और इनवॉइस इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट। जैसे ही इसको नोटिस मिलेगा कॉर्पोरेट डेटर को, ये क्या कहेगा? कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर, कि भाई हमारा तो डिस्प्यूट है, या हमारा तो सूट चल रहा है, ठीक है, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन ये कब फाइल होनी चाहिए? बिफोर रिसीट ऑफ सच नोटिस। ऐसा नहीं कि इधर इसको डिमांड नोटिस मिला और बाद में इसने कोई सूट फाइल कर दिया या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फाइल कर दी, ये पहले होना चाहिए। ठीक है, दी पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल, या वो बोल सकता है भैया मैं तो पेमेंट पहले ही कर चुका हूं, by sending an attested copy of the record of electronic transfer of the unpaid amount from the bank account of the corporate debtor। ठीक है, attested copy भेज देगा, या by sending an attested copy of the record that the operational creditor has encased a check issued by the corporate debtor। Explanation: for the purpose of this section, a demand notice means a notice served by an operational creditor to the corporate debtor demanding payment of the operational debt in respect of which the default has occurred। तो सर्विस ऑफ नोटिस भी होना चाहिए। नोटिस सर्व्ड बाय एन, नोटिस के साथ सर्व्ड लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 8। हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन के लिए एक ही सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 7। ऑपरेशनल क्रेडिटर की एप्लीकेशन के लिए 2 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 में कंडीशंस डिफाइंड है कि कब एप्लीकेशन लगा सकता है, और सेक्शन 9 में क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब मैं आपको सेक्शन 8 का एक एग्जांपल देता हूं कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि ये ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या कॉर्पोरेट पर्सन होना जरूरी है या नॉन कॉर्पोरेट पर्सन भी हो सकता है? हाँ जी, पहली बात ये बताइए
कि ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, पहले तो बताइए ऑपरेशनल क्रेडिटर होता कौन है, पहले ये बताइए ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है। Who has supplied any goods or services to the Right. corporate debtor? राइट, नाउ दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या जरूरी है कि कॉर्पोरेट पर्सन हो या नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकता है? Non-corporate भी हो सकता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। और ये जो कॉर्पोरेट डेटर है, ये कॉर्पोरेट पर्सन होना जरूरी है या ये भी जरूरी नहीं है? It is a corporate debtor, so it should be corporate. यस, बिल्कुल। अच्छा, नाउ ए सप्लायर ऑफ गुड्स हैज इशूड ए नोटिस, डिमांड नोटिस इसने इशू किया। अब वंस द डिमांड नोटिस इज रिसीव्ड, whether that corporate debtor can raise the dispute after receipt of demand notice या नहीं? भाई But what देखिए, will be the proof of dispute that the dispute is already raised? There should be any mail trail or something. राइट, सो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बिफोर द रिसीट ऑफ सच नोटिस। ऐसा नहीं है कि उसको नोटिस मिला उसके बाद में उसने डिस्प्यूट रेज किया ना, दैट विल नॉट होल्ड। उसको बताना पड़ेगा हमारा पहले से ही डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट का मतलब क्या है? कोई जरूरी नहीं कि कोई सूट पेंडिंग हो या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। अगर उसने मेल पर भी बोला है कि भाई यू हैव सप्लाइड अस डिफेक्टिव गुड्स, तो वो भी डिस्प्यूट में आ जाएगा। ठीक है, इफ ही हैज पॉइंटेड आउट थ्रू ईमेल ऑल्सो, तो भी वो डिस्प्यूट में आ जाएगा। लेकिन ये डिस्प्यूट कब होना चाहिए? बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है, नाउ सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है? एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब 10 दिन बीत गए, ठीक है, इसने डिमांड नोटिस दिया, 10 दिन बीत गए, उसने कुछ ना तो ये कहा कि पेमेंट हो गई है, ना ये कहा कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके पास क्या ऑप्शन है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट। Under subsection 1 of section 8, if the operational creditor does not receive payment from the corporate debtor or notice of dispute under subsection 2 of section 8, the operational creditor may file an application before the adjudicating authority. ठीक है, ना तो इसको पेमेंट मिली, ना ही इसको नोटिस के बारे में, कोई डिस्प्यूट के बारे में बताया। ठीक है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस। ठीक है, और एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी वो आपका रूल 6, 8 और 10 में दिया गया है कि कौन सा फॉर्म लगेगा, कितनी फीस लगेगी। साथ में क्या लगाना है? एक तो कॉपी ऑफ इनवॉइस लगानी है डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर। एफिडेविट देना पड़ेगा दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू अ डिस्प्यूट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट। इसको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि भाई कॉर्पोरेट डेटर ने मुझे कुछ नहीं बताया है कि डिस्प्यूट के बारे में। A copy of the certificate from the financial institution maintaining accounts of the operational creditor confirm that there is no payment of an operational debt by the corporate debtor if available। मतलब बैंक से भी अगर कॉपी मिल जाए कि भाई पेमेंट नहीं हुआ तो वो भी लगा सकते हो, अगर अवेलेबल है तो, वरना कोई जरूरत नहीं। A copy of any record with information utility confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor if available। ठीक है, IU से रिकॉर्ड लगा दो, या any other proof confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor or such other information as may be prescribed। ठीक, an operational creditor initiating a CIRP under this section may propose, यहां वर्ड लिखा है may, ठीक है, may propose a RP to act as an IRP। मतलब यहां पर IRP का नाम देना जरूरी नहीं है, may दे भी सकते हो IRP का नाम या नहीं भी दे सकते। इसके अगेंस्ट में आप सेक्शन 7 पढ़ो। सेक्शन 7 में क्या लिखा था? सेक्शन 7 में लिखा था कि भाई नेम, सेक्शन 7 का ये 2 का बी, द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड टू एक्ट एज एन IRP। तो वहां देना जरूरी है, यहां देना जरूरी नहीं है।
ठीक है, मे लिखा जाए। तो नहीं दोगे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके पास पैनल रहता है, उस पैनल में से अपॉइंट कर देंगे। ठीक, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 days। अब यहां पर एप्लीकेशन अगर कंप्लीट है तो क्या, एक तो एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, देयर इज नो पेमेंट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट, इनवॉइस और नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड। अगर मान लो डिलीवरी का प्रूफ नहीं दिखा पाता वो उसी, तो भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर और देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट इन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। मतलब ये कि अगर डिस्प्यूट, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कह दिया डिस्प्यूट है, तो फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट एनी आरपी प्रपोज्ड अंडर सबसेक्शन 4 इफ एनी। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, सर यहाँ पे there is no word called jointly, right? Only a single operational creditor will. सिंगल, बिल्कुल ठीक है, यू आर वेरी करेक्ट। सिंगल ऑपरेशनल क्रेडिटर का 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, ज्वाइंटली नहीं हो सकता। वहां वर्ड है ज्वाइंटली, बिल्कुल ठीक है। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या पेमेंट हो चुका है या क्रेडिटर हैज नॉट डिलीवर्ड द इनवॉइस और नोटिस ऑफ फॉर पेमेंट, नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड और देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट इन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट एनी प्रपोज्ड आरपी, तो उन केसेस में एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, लेकिन उसको टाइम देंगे 7 days टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। ठीक है, and the corporate insolvency resolution process shall commence from the date of admission of the application. Now section 10, section 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 में कौन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है? यहां सीडी खुद एप्लीकेशन फाइल कर, जिसने डिफॉल्ट किया है, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया वो खुद एप्लीकेशन फाइल कर। ठीक है, आपको याद होगा पहले कंपनीज एक्ट में प्रोविजन होता था इन केस द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। ठीक है ना, तो वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन लगा सकते थे। ये वही प्रोविजन वहां से उठा करके यहां पर ले आए, सेक्शन 10 में ला दिया। वेयर कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड डिफॉल्ट ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ में फाइल एन एप्लीकेशन। तो यहां पर डिफॉल्ट किसने किया? कॉर्पोरेट डेटर ने। और एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली है ना, सेक्शन 5 में पढ़ी ना कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन, सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। उसमें कौन है? बेसिकली सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी एटसेट्रा, वो सारे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आते हैं। ठीक, a corporate applicant thereof may file an application for initiating CIRP. The application under subsection 1 shall be filed in such form containing such particulars as may be prescribed. तो रूल 7, 8 और 10 है इसके लिए। और इसके साथ में क्या लगाना है? Information relating to its books of accounts and such other documents for such period as may be specified. Information relating to the resolution professional proposed to be appointed, यहां भी आरपी का नाम देना पड़ेगा एज आईआरपी। ठीक है, तो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन में और सेक्शन 10 की एप्लीकेशन में आईआरपी का नाम देना जरूरी है, लेकिन सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन में नाम देना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, ठीक है, पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अगर कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, or the resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as the case may be, approving filing of the application. ठीक है, अब एक ये बताइए मेरे को कि कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में 10 शेयर होल्डर है। ठीक, एक शेयर होल्डर के पास 80% शेयर होल्डिंग है और बाकी 9 के पास 20% है, तो क्या वो सिंगल शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगा या नहीं करेगा? क्या होगा? Yes. हाँ, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको शेयर होल्डिंग के बेस पर दे। ठीक है, लेकिन अगर एलएलपी है तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां नंबर के साथ, वहां शेयर होल्डिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है एलएलपी। तो अगर 10 पार्टनर है तो 10 में से 3/4 मतलब
8, ठीक है, 7.5 तो हो नहीं सकते, तो 8। The adjudicating authority shall within a period of 14 days of the receipt of the application by an order admit, अगर कंप्लीट है तो, अदरवाइज reject the application if it is incomplete or any disciplinary proceeding is pending against the proposed RP. ठीक है, उनको रेक्टिफाई डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए टाइम देंगे विद इन 7 days, ठीक है। एंड द CIRP shall commence from the date of admission. सेक्शन 10 ए कोविड पीरियड का है कि कोविड पीरियड में क्या हुआ था, इन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो सेक्शन 7, सेक्शन 9 या सेक्शन 10 की एप्लीकेशन नहीं फाइल हो सकती फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च, ठीक है। तो 25 मार्च से कोविड पीरियड का लॉकडाउन लग गया था, तो उन्होंने कहा कि फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months और सच फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year फ्रॉम सच डेट एज में बी नोटिफाइड। तो एक बार 6 months का हुआ था, फिर 3 महीने का नोटिफिकेशन हुआ, फिर 3 महीने का हुआ, तो 1 साल तक उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इस पीरियड में कोई भी डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, ठीक है, फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर में कभी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। भाई 1 साल का पीरियड है, 1 साल के बाद दोबारा डिफॉल्ट हो गया, फिर एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। 1 साल के लिए उनको लीव दिया गया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटा फॉर द सेड डिफॉल्ट अकरिंग ड्यूरिंग द सेड पीरियड। मतलब अगर इस पीरियड में डिफॉल्ट हुआ है, किस पीरियड में, 25 मार्च से लेकर के 1 साल का पीरियड है, तो उसके लिए कभी भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, भाई डिफॉल्ट तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, बाद में दोबारा डिफॉल्ट भी तो हो जाएगा ना। भाई देखो, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 25 मार्च 2020 से लेकर के 1 साल तक डिफॉल्ट रहा, ठीक है, बाद में उसने पेमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में भी पेमेंट नहीं की तो फिर डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसको डिफॉल्ट प्रूव करना पड़ेगा कि 25 मार्च से 1 साल के बाद में दोबारा डिफॉल्ट हुआ, ये पर्पस, ठीक है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that the provisions of this section shall not apply to any default committed under the said sections before 25 मार्च। क्या मतलब, अगर 25 मार्च से पहले कोई डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो 25 मार्च के बाद वो एप्लीकेशन लग सकती है। मतलब ये कि एक मान लो 20 मार्च को डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन तो कोविड पीरियड में भी लग रही थी, है ना। मान लो 20 मार्च को डिफॉल्ट हो गया, तो उसने 20 जून 2020 में एप्लीकेशन लगा देगा, जब मर्जी लगा सकता है। मतलब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, तो 3 साल में कभी भी लगा देगा। तो डिफॉल्ट कब कब का, एक तो ये कि बिफोर 25 मार्च हुआ, अगर बिफोर 25 मार्च है तो इस पीरियड में भी एप्लीकेशन लग सकती है, कोविड पीरियड में भी, ठीक है। अगर 25 मार्च से लेकर के 1 साल के बीच में डिफॉल्ट हुआ तो कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर 25 मार्च से 1 साल बीत गया, उसके बाद में दोबारा डिफॉल्ट हो गया, तो एप्लीकेशन लग जाएगी। क्लियर है, ये 3 सिचुएशन। तो सेक्शन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आपका कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो, इससे पहले कि हम अगले सेक्शन पर चलें। सर ये IRP का जो नाम देना है, तो डिफॉल्ट होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो वेदर देयर इज अ मैकेनिज्म टू चेक देयर डिफॉल्ट, दे आर डिफॉल्टेड और नॉट। नहीं, डिफॉल्ट क्या है भाई, डिफॉल्ट की तो डेफिनेशन पढ़ लिया आपने। नहीं वो नहीं, मिस आरपी का जो नाम देना है, हाँ, तो ही शुड बी क्लियर पर्सन ना, कैसा नहीं उसमें ये लिखा है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो अगर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी प्रोसीड उसके प्रोसीडिंग अंदर है, चेक देखिए करना है, तो वेयर टू ऐसा वेरीफाई है दैट। कि जब ये एप्लीकेशन देते हैं ना, उसमें हाँ। एफिडेविट देते हैं कि मेरे अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है। जब आरपी अपना नाम देगा, कंसेंट देता है आरपी। नहीं, आरपी कंसेंट देगा सर, बट आरपी का कंसेंट समझो रॉन्ग रहा और वो डिफॉल्ट निकला, हाँ तो तो अपनी ठीक है, तो एप्लीकेशन क्यों, चली कोई जाएगी। बात नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो कह देंगे वही 7 दिन का वो डिफेक्ट मान लिया जाएगा ना एप्लीकेशन में, उसको कह देंगे भाई दूसरे आरपी का नाम दे दो, अच्छा, वो नहीं एनी रेक्टिफाई द मैकेनिज्म डिफेक्ट है में क्या? प्रूव हो गया ना। अच्छा ठीक है।
इस डिसिप्लिनरी एक्शन चल रही है उनके अगेंस्ट, उसका कुछ कोई कहीं पे दिखता नहीं है। वेयर वी वांट टू चेक इट समवेयर अबाउट IRP देन। नहीं, वो तो देखो ऐसा है ना, बेसिकली क्या है, उनको अपने आप ही एफिडेविट देना पड़ता है। ओके ओके उस एफिडेविट में ये बात क्लियर होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू दैट फॉर्म। मैं आपको ना वो फॉर्म दिखाता हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था सर, क्योंकि आप नहीं, उनके बिल्कुल ठीक वजह है, से आपने अपना सही पूछा। एप्लीकेशन तो डिफॉल्ट नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए। हाँ, मैं आपको ना एप्लीकेशंस दिखा देता हूँ। ये नजर आ रहा है ना आपको? एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, यस, हाँ। है यस ना? सर। हाँ इसमें सर। क्या है, इसमें सारे फॉर्म्स दे रखे हैं। जैसे एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगाएगा? फॉर्म 1 के अंदर, इस तरह से दिया हुआ है। ये ना, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर इन फॉर्म 1, और कहाँ कहाँ कॉपी देनी है ये सब दिया हुआ है। इसके बाद में ये फॉर्म है एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म 1 हो गया। और फॉर्म 2 मैं बताता हूं आपको, ये है फॉर्म 2। ये देखिए यहां पर है वो चीज। फॉर्म 2 क्या कहता है? ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 बेसिकली क्या है? कॉन्सेंट है। जस्ट अ मिनट। ये I certify that there are no disciplinary proceedings pending against me with the board or IPA he is a member of। ये सिग्नेचर करता है आईपी, ठीक है ना? ओके, सेल्फ सर्टिफिकेशन है उनका। हाँ, affirm that I am eligible to be appointed as IRP, इस तरह से। लेकिन अगर मान लो आपकी बात मान लें कि ठीक है, उसको नहीं पता चला, प्रोसीडिंग हो गई, तो क्या होगा? उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट में डाल देंगे। भाई बोलेंगे 7 दिन के अंदर दूसरा नाम दे दो। हाँ, यस, दैट आई वांटेड टू नो। वी कैन हाँ, रीअप्लाई फॉर दैट, और वी कैन गिव अनदर नेम एज यस वेल। डेफिनेटली, हाँ या, हाँ। ओके ओके। ये सारे फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है ना? तो दीज आर दी फॉर्म्स, और ये हमारा एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में कवर्ड है। तो बाकी कल करते हैं हम लोग, है ना? आपका कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अप टू सेक्शन 10। सर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ये कहाँ, किस डेफिनेशन में आएगा? क्या? एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अगर उसको क्लेम करना होगा तो वो कैसे करेगा? अब देखो ऐसा है कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज एन ऑपरेशनल डेट ओनली। ये ऑपरेशनल डेट में ही आएगा, क्योंकि दैट एडवांस हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, या अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर भाई जो एडवांस सप्लाई कंपनी को करनी थी वो नहीं हुई, है। और जो सप्लाईज कंपनी को करनी थी दैट इज नॉट डन। हाँ, तो ऑपरेशनल डेट में कवर्ड है वो। ऑपरेशनल डेट में कवर्ड है। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सेक्शन 9 में। ओके हाँ सर सर, अगर उसमें जो वर्डिंग्स हैं, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी को दे रहे हैं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, लेकिन इन केस कंपनी से जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलने थे उसके अगेंस्ट में एडवांस है, वो भी कवर्ड होगा उसमें? वो भी कवर्ड है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें। हाँ जी। अच्छा। वो जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज में आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे दूंगा। तो देयर इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कहता है कि एनी डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑपरेशनल डेट। ठीक है सर। वो ऑपरेशनल डेट में आ जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर हाँ जी। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हाँ
in the committee of creditors, if the suppose the application is raised under section 7, ठीक है so in the committee of creditors, only the financial creditors will be there, or there may be operational creditors also? नॉर्मली देर आर ओनली अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. जो अनरिलेटेड, जो रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ना, रिलेटेड पार्टी में आ रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे उसमें. और अगर किसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं और क्रेडिटर है नहीं तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्लस 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, अंडरस्टूड. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो बाकी कल करते हैं फिर. ठीक है, ओके, गुड नाइट. थैंक यू सर, गुड नाइट. समझ में तो आ रहा ना जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी. यस सर, यस सर. देखो कहीं भी कोई दिक्कत हो ना उसी टाइम पूछ लिया करो, वो ज्यादा सही है. नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं. Okay. Yes. Thank you. ओके.